Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education, and I hope all of you are doing good. So in our yesterday's class, I have discussed a topic with all of you that was our Dirichlet theorem, and before that I have told you something about beta function, gamma function. Then I have told you the value of integrals in terms of beta gamma. Then I discussed about Wally's formula. So these were the tools that they will help you in exam. But in the last I have discussed with all of you, that is Dirichlet theorem. And before Dirichlet theorem I have told you about the Dirichlet integral. So what was that if your x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equals to 0, and x plus y plus z less than equals to 1, if the region V is the volume basically of this bounded by these surfaces, then the Dirichlet integral that we have studied like this. Suppose this was V, so over this V, x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz, I told you it will be equals to gamma L, gamma m, gamma n divided by gamma L plus m plus n plus 1. Okay, so I told you one more important thing, that this is not only used in triple integrals, it is used in double integrals as well, and that was the best part of this theorem. I told you that if you have any integral like this, then simply you can use this Dirichlet theorem. It will be gamma L, gamma m divided by gamma L plus m plus 1. And I have discussed one example with all of you as well, that suppose you have this x square y dx dy over the double integral d, and d is your region given by this. So इससे पहले हमने क्या किया था, डबल इंटीग्रल जब पढ़ा था तो इनको बोला था दीज आर द डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, और फिर हमने रीजन ड्रॉ किया था. देन लिमिट्स निकालने के लिए वी हैव यूज्ड एन अप्रोच कि ईदर वी विल ड्रॉ अ स्ट्रिप विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. देन वी विल यूज़ द रूल फॉर फाइंडिंग आउट द लिमिट्स, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे ये इंटीग्रल को हम क्या लिखते हैं, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई, एंड देन इसको हम क्या लिखते हैं, x फ्रॉम 0 to 1. बट दिस विल टेक टाइम, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस. सो नाउ आई कैन राइट डाउन दिस इंटीग्रल एज x cube minus 1, that is 2. Then this is y 2 minus 1, that will be 1 only, dx dy. And now you see these condition and this integral, this becomes a Dirichlet integral, and now I can apply what? I can apply the Dirichlet theorem, and the value of this integral is going to be gamma 3, then you have gamma 2, then you have gamma 3 plus 2 plus 1. Okay, so this is the application part of Dirichlet theorem that you can use in single double integrals also, not in single. Then suppose you have a question like this, x square y dx dy, fine, and I told you that a circle is being given to you. Okay, so one approach that we have, you should have multiple number of approaches in exam to solve any question, right? So if you see this question, either you can go by polar form that I have told you. Okay, so polar form will be, because this is going to be the region, so theta is your from 0 to 2 pi, and your r is from 0 to 1. This is r square cos square theta, then y is your r sin theta, then by change of variable Jacobian concept dx dy is r d theta. You can solve it this way. Otherwise, but in this case this is going to be the simplest way. Otherwise what you can do, you can use the Dirichlet theorem as well. What you can do, you can multiply this by 4, because Dirichlet theorem evaluates the Dirichlet integral in the first quadrant only, and if you are in third quadrant, sorry, if you are in 3 variables, then in first octane. So it is going to be x square plus y square is equal to 1, then your x is greater than equals to 0, y greater than equals to 0, because you multiplied it by 4. Now what you can do, you can just take this capital X, that means x square is equal to capital X, x is equal to x to the power half, and you can replace this value, and again you can use Dirichlet theorem. This was the application of the Dirichlet theorem. But today we are going to study about the extension of the Dirichlet theorem, which is also known as Liouville's theorem. Okay, this will also help us in exam, and this is
extension of Dirichlet theorem. You can also write it extension of Dirichlet theorem, or what you can call it, you can call it as Liouville's theorem. Okay. Okay, just give me 1 minute. This is your Liouville's theorem. Either you call it the extension of Dirichlet theorem or you call it Liouville's theorem, both are same. And this is going to be used by you a little more as compared to the Dirichlet theorem. Why? Because this in this case the situations are developed like this because you will face them in the exam during the integral solving part. So here the conditions are like this. You have x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, z greater than equals to 0, and the difference in extension of Dirichlet theorem and Dirichlet theorem is that there it was being given to you that x plus y plus z should be less than equals to 1. But in this case, what is happening? Your x plus y plus z is lying between two real numbers h1 and h2. And obviously these h1 and h2 have to be positive because you have the condition x, y, z are greater than equals to 0, right? So your v will contain this, okay, that your positive octant plus your x plus y plus z lies between h1 and h2. Then there is a difference in the integral also. There we were having only x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1. Here we have an additional term, that is f of x plus y plus z. Then we have x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1 dx dy dz. So I hope now you people can just understand the difference. There you were not having this term f of x plus y plus z, and specifically you will be getting x plus y plus z's function only. Okay, you cannot have a function of x plus 2y plus z. You can have, but then you will solve it by different method. Then you cannot apply Liouville's theorem. Okay, so this is the function of x plus y plus z. Then what is going to be the value of this integral? It is going to be the gamma L, gamma m, then gamma n, and here you will be having only gamma L plus m plus n. You will not have plus 1 over here. Then integral from h1 to h2 f of u, then you have u raised to the power L plus m plus n minus 1, then du. This is the formula of Liouville's theorem. Now there will be a question from all of yours end that what is this u? From where this came? So you are considering this x plus y plus z as h1. Sorry, this you are considering as u. So as you know that your x plus y plus z lies between h1 to h2. So it means your u will lie between h1 to h2. So f of x plus y plus z will be what? F of u. And then you also have to keep a term u raised to the power L plus m plus n minus 1 du. If you kept it like this, then this will be known as Dirichlet's extension or Liouville's theorem. Okay, and this is very important because most of the time you will observe this function of x plus y plus z inside the integral part. Then you can understand, okay, this question is from where? This question is from this Liouville's theorem or Dirichlet's extension. Fine. Now we will see few questions to understand the Liouville's theorem or how do we apply it in the questions. Okay, suppose we have a question, and what is that question? That we want to evaluate the value of e raised to the power x plus y plus z dx dy dz, and they are saying that positive octant, that x is greater than equals to 0, y is greater than, and similarly for z, and your x plus y plus z is less than equals to 1. Okay, दिस इज़ योर क्वेश्चन. अब आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से डिरिचलेट थ्योरम पे बेस्ड था. अगर ये फंक्शन यहाँ नहीं आता, कौन सा फंक्शन? यहाँ पे आप देखो, आपको एक फंक्शन मिल गया है विच इज़ ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन आ गया. अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1 ऐसे वाई और जेड को लिख देते, तो वो एक्स टू द पावर एल माइनस 1, वाई टू द पावर एम माइनस 1 एंड जेड टू द पावर एन माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाता.
बट क्योंकि ये फंक्शन आ गया इसका मतलब ये किसका हो गया है, लियोविलीज थ्योरम का क्वेश्चन हो गया है। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपके एक्स वाई और जेड तीनों ही कैसे हैं, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी कैसा होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 से तो उसको बाउंड कर ही दिया है। ऐसा नहीं लगता ये हमारे पास h1 हो गया है और ये हमारे पास h2 हो गया है, राइट? क्योंकि दे all these three are following this property, so their sum will also follow this property. So we got h1 and h2. Why we want h1 h2? Because this is a Liouville's theorem question, so obviously we want the value of what, h1 and h2. अब बस क्या करना है, अभी भी अपने पूरे फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो अब हम लिख देंगे x to the power 1 minus 1, y to the power 1 minus 1, z to the power 1 minus 1, e raised to the power x plus y plus z, then we have dx dy dz. और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे गामा l, then gamma m gamma n divide by gamma l plus m plus n, then h1 से h2 यानी 0 to 1, f of u हमें रखना है। f of u का मतलब अब देखो ये है, तो f of u क्या आएगा हमारा, e raised to the power u आएगा ना, क्योंकि u को हमने क्या रखा है, x plus y plus z, तो फॉर्मूले में क्या आता है, f of u, इसका मतलब e raised to the power u, then u raised to the power l plus m plus n minus 1 और du। तो ये क्या बनेगा, ये गामा 1 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये बनेगा आपका गामा 3 विच इज़ 2 फैक्टोरियल, 2 ही रहेगा, 0 to 1 e raised to the power u और u स्क्वायर du। अब इसके लिए तो मैंने आपको आसान सा तरीका बता ही रखा है ना, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन्होंने ट्रिक वाला सेशन नहीं देखा है जाके देख लो, वरना एग्ज़ाम में रेडी रहो एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए इन कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, फिर आपको बाकी क्वेश्चंस में टाइम नहीं मिलेगा। बाई पार्ट्स की ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाई है, जिसे हमें इंटीग्रेट करना होता है एक बार हम इंटीग्रेट करके उसको रख देंगे, और जिसे डिफरेंशिएट करना होता है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे। अब इस कॉलम में हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन, जब तक यहाँ डिफरेंशिएशन के कॉलम में इंडिपेंडेंट ऑफ यू वाला टर्म ना मिले, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन मिल गया इंडिपेंडेंट ऑफ यू। अब हम क्या बनाएंगे, एरो और ऑल्टरनेट सिंबल बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, और अब इनको आपस में हमें क्या करना है, इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको देन इसको और फिर इसको। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1/2 u स्क्वायर ई रेज टू द पावर u, देन माइनस साइन के साथ 2u ई रेज टू द पावर u, फिर प्लस साइन के साथ 2 ई रेज टू द पावर u। और देखो ये आ गया हमारे पास क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अभी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमें इसमें लिमिट भी लगानी, और लिमिट क्या है हमारे पास, u की फ्रॉम 0 to 1। तो अब लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे जब 1 लगाएंगे तो e बचेगा, 0 लगाएंगे u 0 है चला जाएगा, फिर 2 यहाँ पे e आ जाएगा, 0 रखने पे वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे e, और ये देखो वापस से एक टर्म जिसको हम आज तक का क्या कह रहे हैं, खतरे का निशान, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, e रेज टू द पावर 0 को हम 0 रख देते हैं, बल्कि वो क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या बना, e रेज टू द पावर 1 माइनस e रेज टू द पावर 0 विच इज़ 1, सो 1/2 दिस इज e, और देखो 2e कैंसिल आउट हो जाएगा तो e माइनस 2 मिलेगा। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/2 e माइनस 2। नहीं तो फिर तरीके तो और भी थे हमारे पास, और वो हमें पता है। अगर हमें ये लियोविलीज थ्योरम नहीं पता होती तो फिर हम क्या करते, फिर तो हम इसको सेपरेट करते, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर y, e रेज टू द पावर z, फिर z की लिमिट लगाते 0 से 1 माइनस x माइनस वाई, फिर 0 से 1 माइनस x 0 to 1। सो अगर आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है कैलकुलेट करने का तो आप कर लेना, अदरवाइज इन थ्योरम्स को पढ़ लो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज सिलेबस में तो मेंशन नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको कोई पढ़ाता भी नहीं है, बट आई ऑलवेज टीच स्टूडेंट दीज थिंग्स बिकॉज दे हेल्प अस इन एग्जाम। ओके, तो एक दो क्वेश्चन इसका और देखते हैं। So the next question that we have is, we want to find out the value of x plus y plus z plus 1 whole square, then we have dx dy dz, और फिर आपको बोला है, यही कंडीशन दी हुई है, and your x plus y plus z less than equals to 1। देखते ही आपको समझ आ गया, सबसे पहले तो डोमेन को देखा करो, डोमेन आपको एक आइडिया दे देता है, और उसके बाद इंटीग्रल को देखा करो कि आपके पास एक फंक्शन भी दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का, वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जब आपको दिया है तो डोमेन देख लो,
अच्छा, डोमेन भी तो हमें लियोविलीज का दिया है, मतलब दिख गया कि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लियोविलीज थ्योरम। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1 माइनस 1, y टू द पावर 1 माइनस 1, z टू द पावर 1 माइनस 1, dx dy dz। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम अपनी जो थ्योरम है वो लगा देंगे। क्या, गामा एल देन गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एल प्लस एम प्लस एन देन h1 से h2। अब मैंने आपको बोला ना, क्योंकि x y z तीनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली उनका सम इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास h1 क्या आ गया 0 और h2 क्या आ गया 1। तो लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम h1 टू h2 इज 0 टू 1। देन f ऑफ u निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस z को रिप्लेस करो u से, तो दैट इज गोइंग टू बी u प्लस 1 होल स्क्वायर। सो वॉट इट विल बी, u प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे u रेज टू द पावर हमने क्या सीखा था, l प्लस एम प्लस एन माइनस 1 देन डी यू। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा, गामा 1 इज 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1, और यहाँ पे गामा 3 विच इज़ 2 फैक्टोरियल विच इज़ ऑल्सो 1, 0 टू 1, और ये बना u स्क्वायर u प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस केम आउट टू बी व्हाट, डी यू। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास क्या है कि हम u प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर दें और फिर हम क्या करें, फिर हम अपना फॉर्मूला जो है वो लगा दें। तो यहाँ क्या बनेगा, ये 1/2 देन 0 टू 1 u स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट, u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u डी यू। एंड आई थिंक आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग निकालना और बताना मुझे क्या आ रहा है। दिस नाउ बिकेम वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट। बस इसमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल देना, चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये u रेज टू द पावर 4 बनेगा, तो u रेज टू द पावर 5/5 आएगा इंटीग्रेशन में, तो 1/5 मिलेगा। देन यहाँ मल्टीप्लाई करने पे u स्क्वायर मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे u क्यूब बाई 3 मिलेगा, तो 1/3 आ जाएगा लिमिट लगाने पे। ये देखो, ये वाला आपको क्या देगा, 2u क्यूब देगा, तो वो क्या बनेगा, 2u टू द पावर 4/4, तो क्या मिलेगा, u टू द पावर 4/2 मिलेगा, तो वहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। और आप देखो, आपके सिलेबस में ट्रिपल इंटीग्रल मेंशन किया है और ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन दिया था तो z की लिमिट लगा रहे हो, फिर इसको ओपन करोगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे, बस फिर तो वही क्वेश्चन बचेगा एग्जाम में करने को, बाकी सारे क्वेश्चन फिर छोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे टूल्स को अपने साथ रखो जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें, टाइम आपका जो है वो सेव करें। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं इस पर, उसके बाद हम PYQs वॉल्यूम वाले आज फिनिश कर देंगे, तो ताकि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है हमारा वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। अब एक क्वेश्चन दिया है हमको, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, dx dy dz देन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, जैसे ही आपको दिखा करे ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन दिया है, तुरंत कहाँ चले जाओ, डोमेन पे। डोमेन आपको यही दिया होगा और एग्ज़ाम में भी यही दिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग ऑब्वियसली जो बच्चा मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है ग्रेजुएशन तो कर ही रहा होगा ना, और ग्रेजुएशन में तो ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो एवरीथिंग नीड नॉट टू बी मेंशन्ड इन द सिलेबस। कुछ आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और आप पढ़ भी रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे ज़रूरी नहीं हर एक स्टूडेंट पास आउट हो वो ही जैम का एग्ज़ाम दे रहा हो, तो अब वहाँ की कुछ चीज़ें भी यूटिलाइज़ करो। ठीक है, सो कभी कभी वो ये सारी चीज़ें भी चेक करते हैं, तो आप पूरा या तो सॉल्व करते रहो, फिर तो वही करने का, यहाँ पे कुछ और नहीं देंगे वो, क्योंकि वो आपका काम सिंपल ही बनाना चाहते हैं। अब देखते ही समझ आ गया कि ये लियोविलीज थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा, बस हमें इस क्वेश्चन को इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1 - 1 y टू द पावर 1 - 1 z टू द पावर 1 - 1 एंड 1 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब dx dy dz। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी फॉर्म में। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन। ठीक, देन h1 से h2 सिमिलर लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 0 to 1। यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ u मतलब 1 प्लस यू क्यूब आया यहाँ पे। ठीक है, एंड u टू द पावर l प्लस एम प्लस एन माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, du आ जाएगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास 1/2, देन ये आया 0 to 1, यहाँ बचेगा u स्क्वायर
एंड दिस इज़ 1 प्लस यू क्यूब डी यू। अब ये प्रॉब्लम जो है वो सिंपल सा हमारे पास कैसा है, सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम है, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम हमें पता है हम क्या करें, 1 प्लस यू क्यूब को हम टी लेट कर लें, तो 3u स्क्वायर डी यू विल बी इक्वल्स टू वॉट डी टी, तो 1/2। और लिमिट इस बारी क्या बन जाएगी, जब u 0 है तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जब हमारे पास u की वैल्यू 1 है तो t हमारा कितना है, 2। तो व्हाट इट विल बी t फ्रॉम 1 to 2 एंड u स्क्वायर डी यू विल बी dt/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो सॉल्वेबल है ना, अब तो 1/6 लिख देंगे इसको अब हम लोग, ठीक है। दिस विल बी 1/6 और यहाँ आएगा ln t, दिस विल बी फ्रॉम 1 to 2, तो 1/6 ln 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ln 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर questions which can be asked in the exam because they have mentioned about the triple integral and you should know how to solve them. But the point is that either you will solve it in the exam by keeping the limits from 0 to this, 0 to this, or you want to save your time, so you will keep these things with you and you will solve it within 1 minute. Then those 2 minutes you can utilize in either section A or section B or even in few questions of section C. Okay, so let's go to another question. So the next question is, we have to find out the value of x raised to the power minus half, y raised to the power minus half, z raised to the power minus half. मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा दे रही हूँ कि अगर एग्जाम में सिमिलर कुछ ऐसा आता है तो यू कैन अप्लाई इट। dx, dy, dz, डोमेन आपको वही दिया है क्या जो अब तक हम लेते आए हैं, पॉजिटिव ऑक्टेंट एंड देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सॉल्व करना है। तो एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर पा रहे होगे इसके बारे में कि f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हमको दिया है क्या, अगर आप देखो माइनस कॉमन कर लो तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड नज़र आ रहा है, तो उसी का तो फंक्शन है और ये पूरी फॉर्म नज़र आ रही है। अब क्या करना है, अब हमें ऐसा करना है, इसको l-1 में रिप्रेजेंट करना है, तो हाफ माइनस 1, देन यहाँ पे भी हाफ माइनस 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, z टू द पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। और ये क्या बनेगा, 1 माइनस दिस इज़ योर x प्लस वाई प्लस जेड और होल पावर हाफ, देन यू हैव dx, dy, dz। अब आप लगाओ अपना जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या आएगा, गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ, और फिर तीनों को सम करना है यहाँ पे हमें, मतलब गामा हाफ प्लस हाफ, ठीक है। अब h1 से h2, h1 आपका 0 है, h2 आपका 1 है, f ऑफ u मतलब 1 माइनस u की पावर हाफ एंड देन u टू दी पावर क्या, l प्लस m प्लस n माइनस 1 देन डी। सो ओवरऑल क्या मिला, आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास जो गामा हाफ होता है वो रूट पाई होता है, तो रूट पाई का क्यूब मिल जाएगा। देन यहाँ क्या मिलेगा हमको, गामा 3/2, ठीक। देन ये 0 to 1 क्या बना, देखो हाफ प्लस हाफ 1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u टू दी पावर हाफ आ गया, 1 माइनस यू टू दी पावर भी हाफ आ गया और ये du रखा है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे लॉजिक क्या था अभी बताती हूँ। यहाँ देखो हमारे पास गामा 3/2 था, तो अब आपको वो प्रॉपर्टी पता होगी ना गामा n की, n-1 गामा n-1, तो गामा 3/2 जो आया है वो क्या आएगा, हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ हमें पता है क्या होता है, रूट पाई, ठीक। तो वो हम यहाँ पे रख देंगे हाफ देन रूट पाई, 0 to 1, देन यहाँ पे हमें क्या मिला है, u टू दी पावर हाफ एंड देन यहाँ मिला है 1 माइनस यू टू दी पावर हाफ टी। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाएगा। एक तो देखो ऊपर रूट पाई का क्यूब है, तो रूट पाई पाई मिलेगा और एक रूट पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अब आप बहुत सारी चीज़ें करोगे। एक तरीका क्या है, आप सब्सटीट्यूशन यूज़ करोगे। कैसे, u को आप लेट कर लोगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, लिमिट बना दोगे 0 से π/2 और फिर वॉलीज फॉर्मूले की तरफ चले जाओगे। बहुत अच्छी बात है, वो भी कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ तो समय जाएगा ना आपका, बिल्कुल जाएगा। अब उनमें से कुछ बच्चे जो होंगे उन्होंने कल वाला सेशन देखा होगा, उनको कुछ नज़र आने लग जाएगा। क्या नज़र आएगा, यहाँ देखो, डायरेक्ट आंसर करेंगे वो। कल मैंने आपको पढ़ाया था 0 to 1 x टू द पावर m-1 1 माइनस x टू द पावर n-1 दैट वाज इक्वल्स टू बीटा m, बस उनका क्वेश्चन हो गया।
सेम चीज़ यू में नज़र आ रही है ना हमको, तो ये क्या होगा बीटा 3/2 3/2, और यहाँ से आ जाएगा क्या उनका आंसर। और अब वो क्या करेंगे, ये क्या बनता है हमारे पास बीटा एम एन गामा एम देन गामा एन एंड देन गामा एम प्लस एन, यही तो लिखते हैं ना हम लोग। तो ये क्या बना 2 पाई, गामा हाफ की वैल्यू अभी हमने लिखी हाफ रूट पाई, देन यहाँ पे भी हमने लिखा हाफ रूट पाई, और ये देखो 3 + 3 6, गामा 3 यानी 2 फैक्टोरियल आएगा, वो 2 ही बचेगा, चला गया। तो देखो आंसर कितना है हमारे पास, ये रूट पाई पाई हो गया, पाई ऑलरेडी था, π²/4 आंसर आ। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका यूज़ हो रहा है। या तो आपके पास तरीका क्या है, यू को sin² थीटा रखो, फिर आप सब कुछ रिप्लेस करो, उतने में एक बच्चे को दिख रहा है। इनफैक्ट ये स्टेप भी नहीं लिखोगे अगर आपको प्रैक्टिस है अच्छे से, आपको पता है कि दिस 1/2 कैन बी रिटन एज 3/2 - 1, 3/2 - 1, डायरेक्ट आप बीटा 3/2 3/2 लिखोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इन चीज़ों को अपने साथ में रखो, एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ PYQs। ठीक है, एक चीज़ और कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पे, जैसे हमने डिरिचलेट थ्योरम में ये बोला है ना कि इसको हम 2 वेरिएबल में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डबल इंटीग्रल्स में यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप इस लियोविलीज थ्योरम को भी 2 वेरिएबल में यानी डबल इंटीग्रल्स में यूज़ कर सकते हो। बस वहाँ पे z वाला जो टर्म है उसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल्स पे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 3D में विजुअलाइज कर पाना सबके लिए आसान नहीं है, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2012 में आया हुआ है 0 to 1, ये z की वैल्यू दे रखी थी लिमिट, देन y आपको दिया है 0 to z, देन आपको x दिया है फ्रॉम 0 to y, देन दे हैव मेंशन्ड x y² z³ dx dy dz। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, और आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं 1/90, देन आपको बी ऑप्शन दे रखा है 1/50, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1/45 एंड देन डी ऑप्शन आपको दे रखा है 1/10। ठीक है, सो बहुत सिंपल है कि हम सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो y और z कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो क्या बना हमारे पास x² एंड 0 to y, देन हमने लिख दिया dy dz। ठीक है, तो अब क्या बना 0 to 1 देन 0 to z y², और y² भी नहीं रहा अब, तो अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे तो y² ऑलरेडी आएगा, तो z³ y⁴/2 हो गया dy dz। अब आप y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, और अब देखो ये डबल इंटीग्रेशन है, और अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगी। ठीक, क्योंकि डबल इंटीग्रल्स क्या हमने 3 से 4 क्लास लिए, वहाँ पे हमने यही सब कुछ सॉल्व किया है। तो अब हर एक क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैं आपको यही हिंट देती जाऊँगी। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, ठीक है, जिसका यूज़ बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, उसका यूज़ करेंगे। और अब आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिखा है ये 2012 में पूछा गया था, बहुत पुराना है, बट स्टिल आई थॉट टू डिस्कस इट। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, जरा मैं भी तो देखूं कि इतना कोर्स पढ़ाने के बाद कितनी प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने। ठीक है, तो एंड लेट मी चेक कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली आंसर इट एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली आंसरिंग इट करेक्टली। ओके, लेट मी सी दैट। इतना डबल इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद कुछ तो मतलब काम करो आप लोग, डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, सब कुछ तो कर लिया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये है x हमारे पास फ्रॉम 0 to 1, देन y इज़ फ्रॉम 0 to x², देन z इज़ फ्रॉम 0 to y, you have y plus 2z, then here you have dz dy dx is। ठीक है, और यहाँ पे आपको A ऑप्शन दे रखा है 1/53, B ऑप्शन दे रखा है 2/21, C ऑप्शन दे रखा है 1/6 एंड D ऑप्शन दे रखा है क्या 5/3। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन जो है 2014 में है। जैसे ये जो था वो 2012 में पूछा गया था, ये आपको 2014 में पूछा है। एंड देखो लॉजिक हमको वही यूज़ करना है, कुछ अलग नहीं यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, तो x तो एज इट इज़ रहेगा 0 to 1, y भी एज इट इज़ रहेगा 0 to x², z के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हमको पता है y तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो y z आ जाएगा, और z² by 2 कैंसिल हो जाएगा,
और 0 to y, देन वी हैव व्हाट dy dx. अब क्या बनेगा, x फ्रॉम 0 to 1, देन y फ्रॉम 0 to x स्क्वायर. z की जब आप लिमिट लगाओगे यहाँ y स्क्वायर आएगा, फिर z की लिमिट लगाओगे यहाँ भी y स्क्वायर मिला आपको, dy dx 2y स्क्वायर आ गया. अब वापस से होमवर्क पार्ट आगे का सॉल्व करो, आंसर बताओ और कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन है. ठीक है, और मैं भी देखती हूँ कि कितना आप लोग थोड़ा सा पेन और नोटबुक का इस्तेमाल करते हो. ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे ये बोला था द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द solid cylinder x square plus y square less than equals to 2 bounded above by the surface z is equals to x square plus y square and bounded below by the xy plane. ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन होता है ट्रिपल इंटीग्रल का वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उनको भी पता है 3D में सरफेस को विजुअलाइज कर पाना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है. सो दे गिव सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम दी ट्रिपल इंटीग्रल, और ये 2015 में पूछा गया. ठीक है, अब देखो एक चीज़ बोली है, z की लिमिट वो अपने आप बता रहा है आपको, क्या कि बाउंडेड अबव बाय z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड बाउंडेड बिलो बाय एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू 0. इससे वो बाउंडेड बिलो है एंड बाउंडेड अबव है किससे, z से. तो ऐसा नहीं लगता z की लिमिट तो उसने खुद ही कह दी. देखो z इज बाउंडेड बिलो बाय एक्स वाई प्लेन यानी 0 एंड बाउंडेड अबव बाय z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब एक चीज़ और, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैंने वॉल्यूम का अभी तक आपको फॉर्मूला नहीं बताया. जैसे एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, d देन यहाँ पे dx dy होगा, वैसे ही वॉल्यूम का भी फॉर्मूला है. क्या, बस वहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल लग जाएगा, v देन dx dy dz. ठीक है, बस इतना ही करना होता है हमको. तो अब यहाँ पे भी वही पूछा है तो हम वॉल्यूम लिखेंगे. ठीक है, और z की लिमिट क्या लगा देंगे, 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz. अभी पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्स वाई की लिमिट क्या है. ये बन गया हमारे पास. ठीक, अब मैंने आपको बोला था ना एक्स वाई की लिमिट के लिए आप प्रोजेक्शन लेते हो एक्स वाई प्लेन पे. अब एक्स वाई प्लेन पे अगर प्रोजेक्शन लोगे तो देखो ये आपको दे ही रखा है पहले से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2. फाइन, तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ देखो ये आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2. इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन पे सर्कल की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है, √2. तो इसको तो हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 2π, राइट. और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका r जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से √2 होगा. वो स्ट्रिप वाला याद है ना, जब x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रखोगे √2 आ जाएगा. ये r स्क्वायर, देन ये r dr d थीटा, तो क्या बनेगा 0 से 2π. देन ये क्या है हमारे पास r क्यूब, तो r टू दी पावर 4/4 आ जाएगा. देन 0 to √2 एंड d थीटा, तो √2 की पावर 4, तो √2 इंटू √2 क्या मिलेगा हमको 2, तो ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, बस थीटा आएगा 0 से 2π. तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा ना. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बस बी ऑप्शन लगा देना. मैंने बोला ना अगर आपने डबल इंटीग्रल सीख लिया है तो अब आपके लिए ट्रिपल में कुछ भी नहीं रह गया है, वही चीज़ें रिपीट होनी है. z की लिमिट आसानी से निकल आएगी, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से काम करते रहो. ठीक है, तो ये 2015 में वॉल्यूम पे क्वेश्चन पूछा था. अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास. ठीक है, और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपको बोला है द ट्रिपल इंटीग्रल, तो आप देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं. इफ़ द ट्रिपल इंटीग्रल, बट हाँ आता ज़रूर है ट्रिपल से. ठीक है, ओवर द रीजन बाउंडेड बाय प्लेन्स, और वो आपको क्या दिए हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4
x is equals to 0, y is equals to 0, z is equal to 0 is given by। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया है आपको 0 to 2, देन आपको दिया है 0 to लैम्डा ऑफ x, देन 0 to mu of x comma y, एंड हियर यू हैव dz dy dx। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देन द फंक्शन क्या पूछा है आपको, लैम्डा ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x कॉमा वाई। आप याद करो, मैंने आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तो बोला था ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। लिमिट्स में फंक्शन डाल देंगे और फिर आपको पूछेंगे कि उसी में से कुछ रिलेशन। याद आ रहा होगा सबको, है ना, मैंने आपको उस टाइम पे बोला था। ये देखो वैसे ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। फिर मैंने आपको पहला सेशन जब लिया था तो एक चीज़ और बोली थी कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि यहाँ dx है तो ये x की लिमिट होगी, यहाँ पे dy है तो ये y की लिमिट होगी, है ना, ऐसा कुछ पहली क्लास में समझाया था। यहाँ पे अगर dz है तो मैम ये z की लिमिट होगी। आप लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हो, तो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में हमेशा लिख के देते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे पैटर्न बदल गया है, ऑब्वियसली z की लिमिट ही xy के टर्म में होगी, y की तो होगी नहीं, x की तो होगी नहीं। तो देखो ये dz है और यहाँ पे इसकी लिमिट लिखी हुई है, ये dy है, यहाँ इसकी लिमिट लिखी हुई। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि कुछ भी याद मत करो, क्योंकि एग्जाम में वो आपको सारी चीज़ें मेंशन करके देंगे। और इतनी समझ आपके पास है कि आपको दिख रहा होगा कि भाई ये हमारे पास z की ही लिमिट xy के टर्म में हो सकती है। तो म्यू क्या है, z की लिमिट है। अब आप देखो ये क्या लिखा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था ना, इक्वेशन जो दी है आपको सरफेस की उससे निकाल लो, 4 माइनस 2x माइनस वाई। तो देखो आपको ऐसा नहीं लगता आपको म्यू मिल गया हो, म्यू ऑफ x कॉमा वाई, क्योंकि z की लिमिट 0 से वहीं जाएगी। तो क्या बना, 4 माइनस 2x माइनस वाई। अब आपको कुछ और भी दिया है क्या, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। y की लिमिट के लिए मैंने आपको बोला था ना, सरफेस की इक्वेशन में z 0 रख दो, तो प्रोजेक्शन मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से y भी तो आ गया आपके पास, 4 माइनस 2x। तो y की लिमिट क्या होगी, 0 टू 4 माइनस 2x। तो लैम्डा x आ गया कि नहीं आ गया, क्या 4 माइनस 2x। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, अब यही देखो, अगर y को भी 0 कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और x इज इक्वल टू 0 गिवन था, तो 0 टू 2x की लिमिट दी है। हमें पूछा है लैम्डा माइनस म्यू, लैम्डा माइनस म्यू करोगे 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस वाई, कैंसिल आउट हो गया, y आ गया आंसर। देखो डी ऑप्शन करेक्ट है। इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है कहाँ, 2016 में, और 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक, अब तक ये जो हमने 2015 का क्वेश्चन किया इससे पहले, ठीक है, ये 1 मार्क में था सेक्शन ए में, ठीक है। उसके पहले 2014 का जो किया वो 2 मार्क्स में था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई थिंक 4 ही होगा, नहीं 5 है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल, और क्या दिया है वो ट्रिपल इंटीग्रल, v, then here you have x square y plus 1 dx dy dz, where v is the region, v is the region, क्या दिया है, given by x square plus y square less than equals to 1 and then z is between 0 to 2। और ऑप्शंस में आपको क्या दिया है, पाई, then you have 2 पाई, सी ऑप्शन में दिया है 3 पाई, डी ऑप्शन में दिया है 4 पाई। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2020 में, अगेन 2 मार्क्स में, ठीक। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो मैंने बोला ना, ट्रिपल इंटीग्रल में लिमिट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, डबल में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने आप कह रहे हैं कि z की जो रेंज है वो 0 to 2 में है, तो लगा लो फिर z की जो लिमिट है 0 to 2, देन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स डी वाई। तो x और y को तो एज अ कॉन्स्टेंट डील करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ z फ्रॉम 0 to 2 देन डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1, देन यू हैव हियर 2 डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसा है कि हमेशा आपको हर चीज़ सॉल्व नहीं करनी होती है, कुछ चीज़ें आप समझ के भी कर सकते हो।
अब एक्स वाई प्लेन पे आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, इतनी सी बात बोली है। तो अगर आप थोड़े से समझदार हो तो क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। कैसे? एक तरीका क्या है, बच्चे इसको पोलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना, ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब ऐसा थोड़ी है कि मैम ने पोलर फॉर्म पढ़ाया है तो अब जहाँ भी सर्कल दिखेगा वहाँ पोलर फॉर्म लगाना ही लगाना है। ड्रिचलेट पढ़ा दिया, लियोबिलिस पढ़ा दिया, जहाँ कैलकुलेशन नहीं है वहाँ पे भी लगा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, पोलर में अगर हम नहीं जाते, y की लिमिट निकालते, तो वो ऐसा कुछ जाती कि नहीं जाती? देखो यहाँ से जाती है ऐसा कुछ, माइनस से प्लस। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, पहला इंटीग्रल अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ दो पार्ट में, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, एंड देन दिस इज डी एक्स डी वाई, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये तो ऑड फंक्शन की कहानी बन जाएगी? माइनस से प्लस लिमिट जाएगी और y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, वो तो एक ऑड फंक्शन है, अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो, कुछ करना ही नहीं है हमको। और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल इंटीग्रल dx dy किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको बोला ना, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एरिया किसका होगा? सर्कल का होगा एरिया। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 1, सो 2 पाई इज गोइंग टू बी द आंसर। एग्जाम में आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है, हर चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, हाथ के साथ साथ दिमाग भी चलाना है वहाँ पे कि कम कैलकुलेशन करनी पड़े। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल इन पोलर फॉर्म, यू जस्ट ऑब्जर्व y की लिमिट जो है वो माइनस टू प्लस जाती है अगर पोलर में नहीं रखते, और यहाँ पे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस a टू a लिमिट है, y इज एन ऑड फंक्शन, अल्टीमेटली इंटीग्रल इज गोइंग टू बी जीरो। दूसरा, डबल इंटीग्रल dx dy ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द डोमेन, डोमेन सर्कल है, खत्म। नहीं तो फिर पोलर फॉर्म में रखोगे, सॉल्व करोगे और फिर फाइनली जाओगे तो आंसर तो 2 पाई मिलेगा ही, बट उतने में एक बच्चे ने ये सब कुछ करके एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया होगा, तो आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हो कंपटीशन में, ठीक है। सो ये था एक क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया। कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, तो ये तो रही सेक्शन ए की बात, ठीक है। अब सेक्शन सी में भी क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से? ट्रिपल इंटीग्रल से। देखते हैं 2017 में 2 मार्क्स में यानी सेक्शन सी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर आ, अब ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि कैसे वो टॉपिक्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। फॉर अ रियल नंबर x डिफाइन किया जा रहा है, ये आपके पास बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। देन आपको वैल्यू किसकी पूछी है? 0 to 1, 0 to 1 and 0 to 1. You have this, then you have this dx dy dz। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कि ये सबको पता है ना, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता, अब लिमिट्स देख के क्या पता चल रहा है कि भाई जो x और y हैं और जो z है वो सब के सब किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में है, ठीक, इतना हमें पता लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, क्या? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता और ये 0 to 1 के बीच में होता तो ये वैल्यू 0 आ जाती, लेकिन वहीं पे ये जो हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आती? 1 आती ना। अब क्योंकि ये x y z तीनों ही 0 to 1 के बीच में है तो ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, तो ये क्या बनेगा? 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, देन 1 + 1 + 1, ऐसा बना dx dy dz। और फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ये आया 3 और सबके रिस्पेक्ट में करोगे 1 ही आ जाएगा, आंसर क्या आया? 3। तो देखो आप इतने आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना डबल का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है, बट ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। थोड़ा सा लिंक कर दिया किससे? रियल एनालिसिस से। ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है बट लिंक कहाँ से कर दिया? रियल एनालिसिस से। भाई लीस्ट इंटीजर पूछ दिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो उन सब की वैल्यू 1 रख दो, जिसको नहीं पता तो बस वो ऐसे ही बैठा रहेगा, ठीक है। सो इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक पढ़ के जाना है, कब किसको किससे कनेक्ट करके साथ में क्वेश्चन पूछ ले, नोबडी नोज। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, कहाँ पे, 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में 1 मार्क में। क्या है क्वेश्चन? दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द surfaces x is equals to 1 minus y square, then x is equals to y square minus 1 and the planes। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली वो डबल इंटीग्रल्स के ही होंगे, क्योंकि z की लिमिट आपको बहुत आसानी से दे रखी होगी, ठीक है। यहाँ लिखा है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज, ठीक है, और ये ऑब्वियसली 1 मार्क में पूछा है, सेक्शन सी में है, ठीक है, 2019 में। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, डी एक्स डी वाई डी जेड। जेड की लिमिट वो खुद ही चीख के बता रहा है, हमको उसमें मेहनत ही नहीं करनी कि बाउंडेड है इन बिटवीन द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0 to 2, तो मतलब जेड इज फ्रॉम 0 to 2, वी विल राइट इट डाउन। तो 2 टाइम्स क्या मिला हमको? डी एक्स डी वाई। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया को। अब एरिया किसका? जो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया है, और वो क्या है? वो तो ये है, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1। अब याद करो वो क्लास जिसमें मैंने आपको एरिया पढ़ाया हुआ है, पढ़ा है ना एरिया। अब जिसने एरिया वाली क्लास देखी है उससे ये क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। ये क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और ऊपर वाला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस का x, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन के साथ x माइनस 1 वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x माइनस 1। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पैराबोला है हमारे पास जिसका जो वर्टेक्स है वो क्या है? -1,0, और वो कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? x इज इक्वल्स टू 1 वर्टेक्स है, और वो, अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता लगा ये दोनों एक ही पॉइंट से जाएंगे? तो देखो, जब ये वाला हमें निकालना है, ये क्या? x इज इक्वल्स टू 0 लाइन है, दोनों पे जब आप x को 0 रखोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 0 ही मिल रहा है, यानी y की वैल्यू कितनी? +-1, इसलिए वो एक ही पॉइंट से निकलेंगे, ठीक। तो ये होगा 0,1, ये हो गया 0,-1, दिस इज योर -1,0, दिस इज योर 1,0। इस रीजन का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, और वही हमको क्या करना है? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके रख देना है। तो 2 इंटू एरिया, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू एरिया, जो हमारा वॉल्यूम आ रहा था। तो अब इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है ना कि आप क्या करो, पैरेलल टू वाई या पैरेलल टू एक्स एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। बस आप ये देख लो कि वो जो स्ट्रिप है वो थ्रू आउट द रीजन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ एक स्ट्रिप ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये वाले के लिए इसका वर्टेक्स क्या है? -1,0, तो मतलब ये वाला हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे तो कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला क्या है? जिसका वर्टेक्स जो है वो 1,0 हो, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है? 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अब आप इसको कहीं पे भी शिफ्ट करो, ये ऐसे ही जा रही है, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यहाँ क्या बनेगा? 2 टाइम्स दिस इज गोइंग टू बी x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, वाई स्क्वायर माइनस 1 से 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है? बॉटम टू टॉप जाते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट y क्या है? -1 हमारे पास, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे y क्या है हमारे पास? 1। बस ये लिख दिया हमने dx dy, ठीक। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। अब आप यहाँ देखो 2 टाइम्स, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 से हम क्या कर सकते हैं? 0 to 1 बना दे y की लिमिट। और इवन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, चलो अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। दिस इज़ फ्रॉम -1 to 1, इसमें भी देखोगे तो लिमिट एक्चुअली में -1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई स्क्वायर ही गई है, बट ठीक है। 2 टाइम्स दिस इज़ वाई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू -1 to 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है, डी वाई। तो क्या मिलेगा हमको? दिस इज़ गोइंग टू बी 2 टाइम्स -1 to 1, दिस इज़ 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो अब हमें पता है हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 4 बन जाएगा। लिमिट को, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो 0 to 1 कर लेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर देन डी वाई। और आई थिंक अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये मैं सॉल्व नहीं करने जाऊँगी, नहीं तो फिर पुराना पीछे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बस देख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है।
उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ आपको पता है, क्योंकि आपको आंसर देना है क्वेश्चन का, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो यही था क्वेश्चन नंबर 7, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है, लास्ट में आपको आंसर बताना है। तो अब आपके होमवर्क में एक और क्वेश्चन जुड़ गया, सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है, बस आपको आंसर बताना है कि इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा। वैसे तो आसान है, दिख रहा है 8 y माइनस वाई क्यूब बाई 3 0 to 1, so that is going to be 8, then this is 1 minus 1 by 3 2 by 3, 16 by 3 आंसर आ रहा है। तो 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, 5.33 वो आप लिख देना, ठीक है। तो चलो ये भी हो ही गया। एक क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2018 में पूछा है, 2 मार्क्स में, सेक्शन सी में ही पूछा गया है, ठीक है। आपको बोला है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड in R3 bounded by the surfaces x is equals to -1, then you have x is equals to 1, ठीक है, y is equals to -1, y is equals to 1, then you have z is equals to 2, y square plus z square is equals to 2 is अल्फ़ा माइनस पाई, और देन आपको अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है ना। तो इस साल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया है, बट वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में आया हुआ है कि एक स्केलर की वैल्यू डाल दी है और हमसे पूछा है कि इस स्केलर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट्स ही निकालनी है हमको और कुछ नहीं करना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जब हम वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो हमें x और y की लिमिट दे रखी है, कहाँ -1 to 1 जाएगी, y -1 to 1 जाएगी, ठीक है। z की लिमिट के बारे में बस हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ से ये कहाँ जाएगी, ठीक है। तो बस वही हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे z की एक तो वैल्यू 2 है ही, उससे बाउंड हो रहा है, दूसरी हमें z की वैल्यू क्या निकालोगे अगर आप यहाँ से, तो क्या मिलेगी, प्लस माइनस z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बेसिकली ये बनेगा जब, तो हमारे पास एक अपवर्ड सरफेस होगी, एक डाउनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि एक जगह z इज इक्वल्स टू, मतलब एक पॉजिटिव z एक्सिस पे उसका पार्ट होगा इस सरफेस का, और एक नेगेटिव z एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा रख देते और z इज इक्वल्स टू 2, और एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, 2 माइनस समथिंग है, राइट, और क्योंकि ये रियल नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए y की वैल्यू देखो -1 to 1 है, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट डिफाइन है। तो ये वैल्यू जो है वो 2 से कम है, तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 से कम होगा, और z इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब ये वैल्यू लेस देन 2 होगी। तो अगर आप z की लिमिट जो है वो -√2 माइनस वाई स्क्वायर से +2 रखते हो, तो बीच में एक सरफेस और भी तो आ रही है प्लस वाली, √2 माइनस वाई स्क्वायर, तो गलत नहीं हो जाएगा, फिर बीच की एक सरफेस छूट जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या पता लग रहा है, और फिर इनको भी जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या पता लगेगा कि z की जो लिमिट है वो 2 माइनस वाई स्क्वायर से 2 पे ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा रखेंगे तो बीच में और कोई सरफेस नहीं आएगी, स्ट्रिप हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई डिवीजन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आप कुछ जैसे हमारे पास 3D ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, उन पे देखोगे तो आपको दिखेगा भी कि जो इस सरफेस की अपवर्ड सरफेस है उससे z इज इक्वल्स टू 2 तक के रीजन की बात करी गई है। शायद अभी आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, बट इफ़ यू विल सी द 3D फिगर ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड। और अब बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो -1 to 1 z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें, 2 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज dx dy। और अब देखो ये हमारे पास हमको दिख रहा है कि दीज ऑल आर इवन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स 0 to 1 देन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर dx dy रख देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको होमवर्क में देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 8। तो अगेन आई एम लीविंग दिस एज अ होमवर्क, और ये 2018 में पूछा गया अल्फ़ा की वैल्यू। और जो आंसर आएगा ना आपका, उसको आप क्या करोगे, अल्फ़ा माइनस पाई रख देना, अल्फ़ा माइनस पाई रख देना, तो वहाँ से कंपेयर कर लेना, अल्फ़ा की जो भी वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब से हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम वाला पार्ट है, वो फिनिश होता है। जितने मुझे टूल्स बताने थे आपको वो ख़त्म होते हैं। अब सिर्फ आईसी पे एक लेक्चर रह गया है सरफेस एरिया का, उसके बाद आपका ये जो आईसी का कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद हम एक नया कोर्स लेकर आएंगे। वो कोर्स क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। तो अब आईसी पे केवल एक ही सेशन की ज़रूरत है जहाँ पे हम सरफेस एरिया डिस्कस करके और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस विच आई हैव आस्क्ड यू इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।